So, hello, good evening, guys. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Okay, good evening. Fine. So, today we are going to cover another new topic that is iron carbon equilibrium diagram. It is very important as compared to other phase diagram because in maximum cases we are dealing with the material that is a kind of steel or iron. Okay, so that's why as per industrial application we must know the features, we must know the cooling behavior, or we must know the compositional feature of your iron carbon when we are mixing iron with carbon, or the mixture of this iron and carbon, sometimes known as steel or sometimes known as the cast iron. Okay, so here in this next slide I'm going to tell you about the cooling behavior of your iron carbon diagram. Okay, so means when from the liquid phase, if you are cooling down your pure iron, then what happens, what are the different features, what are the different crystal structure in which it converts during the cooling or during the transformation. Okay, so here on screen you are able to see that there are two lines. One is your vertical line and another is your horizontal line. So on vertical line there is a temperature. Okay, so on vertical line there is a temperature. Okay, and that temperature is in degree centigrade, and where in your horizontal line tells you about the time. Okay, so we know that the melting temperature of pure iron is around 1539 something. Okay, so here I have already drawn four segments of the horizontal line for the ease of understanding, ease of the drawing. So what we are going to do, okay, so this horizontal line is at 1593, sorry, 1539 degrees centigrade. Okay, another horizontal line, please keep these all temperature in your mind because they are very important temperatures. Okay, so it is 1394. Okay, so all temperature are in degree centigrade, so that's why I'm not writing degree centigrade every time. So third horizontal line is at 910, and the fourth one is around 770. Okay, so what does it mean? Okay, so here I am drawing this particular line, then this particular line coming up by this, then this line is joined by this line, and then we'll follow the same trend over here, and then joined by this line, followed by the same trend. Okay, and then it is connected with this. Okay, and then it will come up to some temperature that is around room temperature, and room temperature you usually measure as a 30 degree or 25 degree. Okay, the room temperature. Okay, so here above this 1539, what is there? Pure iron. Pure iron is in liquid state. Okay, and as soon as it touches this 1539 degree centigrade, there is a kind of transformation, phase change, and the phase change is in solid form. So first crystal starts to form at this particular temperature. Okay, so at this particular temperature, or when you are coming down to this 1539 degree centigrade, your liquid phase converts into the solid phase.
But here you have to remember, because your iron is a kind of allotropic nature. What is this allotropic nature? Means at different temperature, the behavior or the crystal structure of your iron is different. So that's why when you are cooling down your pure iron from liquid phase, okay, up to this 1394, you will have a solid iron, but the form of this solid iron is a kind of delta iron. Okay, so it is a kind of delta phase or delta iron. Okay, and the crystal structure of this delta iron is a BCC structure. Okay, when further cooling continues beyond this, below this 1394 degrees centigrade, this particular crystal structure change its structure, and the new crystal structure is of FCC phase. Okay, FCC kind of crystal structure will be acquired below this 1394, and the name of this phase is gamma phase or gamma iron. Okay, so gamma iron will exist in between 1394 to 910. Below this 910, again the crystal structure of your pure iron converts into the BCC structure, and this phase is known as, again this phase is known as alpha phase. Okay, and then further whole will be the alpha phase, but there will be a difference here in this portion and in this portion. I'm just going to tell you the difference, but recall these all the things. From your liquid phase, starting will be there. I'm talking here about the pure iron, pure Fe. There is no addition of carbon in this Fe, because on adding the Fe, adding the carbon in Fe, the phase change will be a different kind of, phase change will be a different kind. But in the case of the pure Fe, the phases are changes as per this particular order, which is shown on your screen. Okay, so 1539, 1394, 910, 770 will be the major points where some change will be there. So first change will be there from your 1539, means liquid phase से यहाँ क्रिस्टल बनना शुरू हुआ, और जो क्रिस्टल पहली बार बनेगा 1539 से, वो आपका बीसीसी क्रिस्टल का होगा, और उसका नाम हम लोगों ने डेल्टा आयरन दिया हुआ है. ठीक, डेल्टा आयरन एग्जिस्ट करेगा अप टू 1394, और जैसे ही 1394 अप्रोच करेगा और उसके नीचे आएंगे आप अप टू 910, योर फेज विल बी गामा फेज और गामा आयरन, and the crystal structure of this gamma iron will be FCC. Okay, below this 910, your alpha phase will exist, and the phase alpha will have the BCC kind of crystal structure. Okay, तो एक ही बार केवल हमारा HCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है गामा फेज में, एंड गामा फेज एग्जिस्ट only in between 1394 to 910. Okay, please remember. Now here I am going to talk about you that I have participated this 9 10 and 7 7. Okay, 9 10 and 7 7. So two alpha phases are there. Okay, so why these two different segments are there, though the phase structure is same? Okay, so here the difference is, this is a kind of paramagnetic phase, paramagnetic feature. Okay, paramagnetic properties will be there. Paramagnetic properties will be there within the material, within the pure iron, when that cools in between 910 to 770. Okay, and then ferromagnetic property will be there and ferromagnetic properties will be there if you cool your pure iron below 770 degrees centigrade. Okay, though the crystal structure of both the alpha iron is same. Okay, means in between this 910 to 770, no magnetic property will be there.
Okay, so this is the thing through which we can understand the different phases on the based of the cooling temperature related to your प्योर आयरन. अगर प्योर आयरन को लिक्विड फेज से ठंडा करके आप सॉलिड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर तक ला रहे हैं, सो व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस बाय द प्योर Fe इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फेजेस. और वो डिफरेंट फेजेस क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो डिफरेंट फेजेस इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग हैं. अदरवाइज तो पूरा का पूरा तो सॉलिड ही हो रहा है बिलो 1539. ओके, so this is some information related to the cooling of your pure iron. Okay, now one thing I'm going to tell you, which we have already covered in the previous lecture, about the invariant reaction. Okay, invariant reaction, we have four kind of invariant reaction, जिसमें कि हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स के फेज डायग्राम को लेके भी समझने की कोशिश की थी. इसमें पीबी, एंटीमनी और ये सब हम लोगों ने लिए थे कि लिक्विड में सेम सॉलिबिलिटी है बट सॉलिड में सॉलिबिलिटी सेम हो भी पा रही है, पार्शियल सॉल्युबल भी हो रहा है, तो इस टाइप की चीज भी पढ़ी थी हम लोगों ने. ओके, सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि जो भी हमारी इनवेरिएंट रिएक्शंस हैं, देयर आर फोर इनवेरिएंट रिएक्शन: यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, ईटोक्टोइड एंड पेरिटेक्टोइड. ओके, these all four invariant reaction I will show you within the graph of this iron carbon equilibrium diagram. Okay, so here I have just drawn some horizontal line and vertical line to show you this iron carbon equilibrium diagram. Okay, so here few points are very important. And among those few points, only 2 points are very important. One is the important temperatures and the other one is the important composition. Okay, so as you know that this vertical line will always behave as a temperature indicator in case of any equilibrium diagram, whereas this horizontal line behave as a compositional line, a line which shows the composition. But in the case of iron carbon diagram, here iron will be there, and here at the end there is a kind of Fe3C. Okay, and the maximum percentage of Fe3 is 6.67%. Okay, means यहाँ पर हम उस तरीके से फेज डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं जिस तरीके से आप लोगों ने सब में पढ़ा था कि यहाँ पर Ni, for example, if Ni and nickel and chromium is there, so Ni is 100% at this particular point and decreasing when you are moving from left to right. But chromium is 100% at this end, and when you are moving from right to left, then the percentage of chromium is decreasing. Okay, so it is not that kind of the graph, because on the other end there is a maximum percentage of carbon which was soluble in pure iron, that is 6.63, and beyond this particular percentage no one is interested to know the phases or know the features or the property of iron carbon diagram, because beyond this particular position or beyond the addition of 6.67% of carbon in iron, material is too brittle कि वो किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है. वो इतना ज्यादा ब्रिटल हो जाता है कि किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है. सो दैट्स व्हाई नो वन इज इंटरेस्टेड टू नो कि 6.67 के बाद क्या होता है. ओके, सो कमिंग बैक, अच्छा एक चीज हमें और विशेष ध्यान रखनी है कि आप डिफरेंट बुक्स को अगर आप रेफर करेंगे तो हर स्पेशल पॉइंट में किसी बुक के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ वेरिएशन ऑफ एटलीस्ट 5 डिग्री और 10 डिग्री. अगर किसी टेम्परेचर को कैलिस्टर ने 725 बताया है तो मे बी केएम गुप्ता हैज recommended that temperature is 727 something. 1439 किसी बुक में टेम्परेचर है तो हो सकता है किसी में 1440 लिखा हो या 1445 लिखा हो. तो 5 to 10 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है ऑथर टू ऑथर. ओके, so now I am going to consider some important temperature. So first of all, the important temperature is 1535. Okay, or 1539. Some books have written 1539 as a melting temperature, or some books have written as a 1535 as a melting temperature. Means beyond this
particular temperature your pure iron is in liquid form, and below this some solid crystallization is there. Okay, 1535, then 1410. Okay, these two temperatures are very important. Another important temperature is 1495. ओके, और 1495 के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होनी चाहिए. उस हॉरिजॉन्टल लाइन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे. ये अभी मैं केवल बनाकर दिखा रहा हूं, इसको कैसे समझना है, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि कहां कहां हमें क्या बनाना है, तो वो हम लोग फिर शॉर्टकट तरीके से समझेंगे. फर्स्ट वी विल ड्रॉ सम हॉरिजॉन्टल लाइन एट सर्टेन टेम्परेचर. initial of the horizontal line will be have some different kind of composition. तो इस तरीके से हम उसको समझ लेंगे. Okay, so first horizontal line is at 1495. Another horizontal line we will have around this particular temperature, that is your 1135. Okay, so this is around your temperature 1135. करेक्ट. और उसके बाद हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि हमारी 725 या 727 पर है. ओके, जीरो से नहीं टच हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है और एंड तक जाएगी. The value at this particular point is 0.02. 0.02. ओके, इसी पर एक हमारी वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी जो कि 0.8 की वैल्यू होगी. 0.8 मैं यहां कहीं डिनोट कर दे रहा हूं. ओके, एंड अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन विच वी हैव ड्रॉन ऑलरेडी एट 1135 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 1135 पर है और ये कंपोजिशन जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2.1. ओके, एक इसमें मेजर पॉइंट हम ले रहे हैं 4.3 पर. ओके, सो यहाँ पर Fe प्योर है. धीरे धीरे Fe की प्योरिटी कम होती जा रही है और उसमें कार्बन मिक्स होता जा रहा है. तो ये जितना भी आपका 0.02, 0.8, 2.1, 4.3 या यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स आने वाले हैं दैट इज 0.1, 0.2 और 0.5. ये सब पॉइंट्स जो हैं दे आर नथिंग, दे आर जस्ट द कंपोजिशन दैट 0.1% carbon has been added, 0.2% carbon has been added. Okay, तो ये यहाँ पर हमें ध्यान देना है. Okay, so now three major horizontal lines are there. First is at 1495 with the percentage of 0.1 to 0.5. Another horizontal line at 1135 with the percentage of 2.1 to the end, but in middle 4.3 is a major percentage जहां पर आपको कुछ स्पेशल फीचर मिलने वाले हैं. Another important horizontal line is at 725 जो कि 0.02 से स्टार्ट होगी और उसमें 0.8 मेजर पॉइंट होगा और उसके बाद एंड पे जाके ये खत्म हो जाए. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग गोइंग टू स्टार्ट द ज्वाइनिंग ऑफ दीज ऑल द पॉइंट्स. मेल्टिंग पॉइंट से लाइन टच करेगी आके आपके 0.1 पर. ओके, और ये लाइन जाके आपको 1410 पे कनेक्ट करनी. करेक्ट, 1410 की लाइन आपकी 0.2 से कनेक्ट होगी और 0.2 से कनेक्ट होने के बाद ये 2.1 वाले कंपोजिशन पे आके ज्वाइन. करेक्ट, उसके बाद ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट वाला 1535 वाला पॉइंट है ये सीधे 0.5 पे जाके टच करेगी. ओके, एंड देन फर्दर it is going to join with this same kind of composition, that is 4.3. okay, and then this 4.3 से start होके ये कुछ ऐसे लाइन हमारी चाहिए. okay, so now this 2.1 वाली लाइन को हमें 0.8 से कनेक्ट करना है. ओके, और यहाँ पर आपका एक 910 टेम्परेचर भी है जिस 910 से आपका ये 0.2 कनेक्ट होगा और उसके बाद ये नीचे एंड तक आएगा 0 डिग्री या रूम टेम्परेचर तक आएगा, बट क्लोज टू जीरो कंपोजिशन नहीं होगा. प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इट विल
come down but it will not touch to 0. ओके, सो ये 0.02 कंपोजिशन है, उसके आगे 0.8 कंपोजिशन है, उसके बाद इसको 9 10 को 0.8 मिला दें. ओके, सो दिस इज योर आयरन कार्बन डायग्राम. ओके, बहुत ही सिंपल है. 2 बार अगर आप अपने पेन से अपनी कॉपी में बनाएंगे आप बना पाएंगे. आपको कुछ नहीं करना है, सम स्पेशल टेम्परेचर, सम स्पेशल कंपोजिशन को सबसे पहले ड्रॉ करना है, फिर उनको ज्वाइन करना है बारी बारी से. अगर आपने ये पॉइंट्स याद कर लिए कि कितने कंपोजिशन पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, कितने कंपोजिशन पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन किस कंसर्न टेम्परेचर से कनेक्ट होगी, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो now it is clear that Fe is 100% at this particular point, and as you are moving from this left direction to right direction, the carbon is adding. Okay, so purity of Fe decreasing, and just because of the decreasing the purity of the Fe, आपका जो लिक्विड फेज यहाँ पर 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, ग्रेजुअली इट इज डिक्रीजिंग. और यहाँ पर तो आप देखो ये 4.3% कार्बन जैसे ही उसके अंदर मिक्स हो जा रहा है, तो आप देखो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है दैट इज कमिंग around 1135. Correct? So this is the line of 1135 degree centigrade. Okay, okay, so up beyond, this is your liquidus line. This is your liquidus line. Liquidus line means above this particular line whole phase is in liquid phase. Okay, so this is your liquidus line. सबसे पहला फेज आपका कहां बनेगा? सबसे पहला फेज सॉलिड फेज आपका इस 1535 के नीचे बनेगा, और सबसे पहला फेज बनता है यहां पर. ओके, और ये फेज होगा आपका डेल्टा फेज. ठीक है, और डेल्टा मैंने आपको बताया दैट इज अ काइंड ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर. ओके, एंड इट इज नोन एज डेल्टा फेज. और उसके बाद आपका बनेगा यहां पर मेजर गामा फेज. ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में ऑस्टेनाइट फेज भी कहते हैं. ठीक है, और ये ऑस्टेनाइट फेज जो है नाम दिया गया उस साइंटिस्ट के ऊपर. ऑस्टिन नाम था, सरनेम था उस साइंटिस्ट का जिन्होंने इसको डेवलप किया था. सो ऑन द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट दिस ऑस्टेनाइट फेज इज recommended. Okay, and this particular phase has the crystal structure of FCC. Okay, and below this, this is the solid phase here. Okay, here again the solid phase is there, जिसको कि हम लोगों ने अल्फा आयरन का नाम दिया हुआ है या अल्फा फेज कहा है. ओके, एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दिस अल्फा फेज इज अगेन बीसीसी. करेक्ट? तो अब अगर हमें ये मेजर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पता चल गए हैं, नाउ वी कैन डिफाइन कि जो उनके बगल बगल के सेगमेंट्स हैं वहां पर कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा. Look, this is your delta phase. Here it is completely liquid phase, so it will be delta plus liquid. Okay, here it is a gamma phase. Here it is a gamma phase. Here it is a delta phase, so it will be delta plus gamma. Correct? Here it is a gamma phase. Here it is a liquid phase, so in between these two there will be a kind of gamma plus liquid phase. Correct? आगे चलते हैं. अल्फा फेज यहां पर है, गामा फेज यहां पर है, तो ये अल्फा प्लस गामा फेज हो जाएगा. करेक्ट? आगे चले, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे चलते हैं हम लोग. ये जो चीज है Fe3C, इसको हम लोग सीमेंटाइट बोलते हैं. सीमेंटाइट. तो अगर यहाँ पर लिक्विड है और ये सीमेंटाइट है, तो यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड प्लस सीमेंटाइट हो जाएगा. करेक्ट? और ये अगर हमारा गामा है, ये अगर हमारा गामा है, तो एक सर्टेन कंपोजिशन तक हमारा अल्फा प्लस Fe3 बनेगा. कुछ पोजीशन पे हमारा गामा प्लस Fe3 बनेगा, Fe3C बनेगा. यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो गामा प्लस Fe3C हमारा बनेगा. यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा प्लस Fe3C बनेगा. ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द phases. Okay, or the mixture of the phases in some standard composition at some certain temperature. Now the question is कि वो invariant reactions के पॉइंट कहाँ हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे पीछे वाले फेज डायग्राम्स में, और अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि where is our eutectic
यूटेक्टिक कहाँ है, यूटेक्टॉइड कहाँ है, पेरिटेक्टिक कहाँ है, पेरिटेक्टॉइड कहाँ है. Okay, so here liquid is there, and then liquid is converting into two phase. One phase is gamma and another phase is this Fe3C, which is known as the cementite. So liquid phase दो अलग अलग phases solid phases में convert हो रहा है. इसका मतलब ये हमारा eutectic reaction का point हो गया. ठीक है, तो इसको हम eutectic point भी कह सकते हैं. इफेक्टिव टेम्परेचर 1135 हो जाएगा और इसका जो करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन होगा दैट विल बी नोन एज इटेक्टिक कंपोजिशन. ओके, एक क्लियर हो गया हमारा. दूसरा हमारा पॉइंट यहां पर होगा, जो एक सिंगल फेज गामा सॉलिड फेज में था और उस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे ये दो डिफरेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मींस वन सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू टू डिफरेंट सॉलिड. करेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा इटेक्ट्राइड. अब बात आती है पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहां होगी और पेरिटेक्टोइड रिएक्शन कहां होगी. तो बेस्ड ऑन योर पेरिटेक्टिक रिएक्शन फीचर यू कैन आइडेंटिफाई कि आपकी पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहां होगी और पेरिटेक्टोइड रिएक्शन कहां होगी. करेक्ट, पेरिटेक्टिक रिएक्शन आपकी होती है डेल्टा प्लस लिक्विड दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ सॉलिड. मींस लिक्विड और एक सॉलिड हो और वो उसको दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हो, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन आपकी एग्जिस्ट करेगी. ओके, तो ये मेन फीचर्स हो गए इनवेरिएंट रिएक्शंस के आयरन कार्बन डायग्राम के. जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई इनवेरिएंट रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी वो पर्टिकुलर टेम्परेचर उस इनवेरिएंट रिएक्शन का टेम्परेचर कहलाएगा. दैट इज समहाउ may call as eutectic temperature, eutectide temperature, peritectic temperature और peritectoid temperature. ओके, और जो उसका कंसर्न कंपोजिशन होगा, जो रेस्पेक्टिव कंपोजिशन होगा वो उसका कंपोजिशन कहलाएगा, जैसे यूटेक्टिक कंपोजिशन, यूटेक्टाइड कंपोजिशन, पेरिटेक्टिक कंपोजिशन एंड पेरिटेक्टाइड कंपोजिशन. करेक्ट, आई थिंक नो फर्दर डाउट विल बी देयर. बस एक चीज इसमें हमें बताना है कि इस आयरन कार्बन डायग्राम में एक सर्टेन कंपोजिशन तक हमारा मटेरियल जो है वो स्टील कहलाता है, एंड बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर कंपोजिशन हमारा मटेरियल जो है वो स्टील नहीं कहलाता है. ओके, अप टू 2% ऑफ योर कार्बन. ओके, ये पूरी लाइन जो है आपकी स्टील कहलाती है. ओके, प्योर आयरन से लेके 2% एडिशन तक का कार्बन जो है वो स्टील कहलाता है. बियॉन्ड दिस 2% योर कास्ट आयरन विल कम इनटू पिक्चर. ओके, अब स्टील में भी हमारे पास दो प्रकार के स्टील होते हैं. वन इज नोन एज हाइपो स्टील और अनदर वन इज नोन एज हाइपर स्टील. हाइपर
Okay, so here I'm going to introduce another new term that is known as लेडोबुराइड. Okay, जो कि आपके राइट साइड लोअर टेम्परेचर पर फेज डायग्राम में एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्ट इसीलिए करता है जब आपका सीमेंटाइट का परसेंटेज ज्यादा होगा along with your ऑस्टेनाइट. मींस ऑस्टेनाइट कम होगा, सीमेंटाइट का ज्यादा परसेंटेज होगा. मींस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ austenite plus cementite. Okay, so this will sometimes known as ledoburide. Okay, so ledoburide is a kind of combined name of a composition of two phases. One is austenite and other one is known as cementite. ऐसे ही हमारा एक परलाइट फेज होता है. Okay, similar to this there is a kind of another phase which is known as perlite. Okay, तो ये perlite कुछ नहीं है, it is a combined phase of your alpha iron with this cementite, so it is known as perlite. Okay, so this is known as the perlite phase. तो दो अलग अलग फेजेस को ना बोल के हम उसको इन शॉर्ट परलाइट फेज या लेडोबराइड फेज कह सकते हैं. परलाइट फेज तब कहेंगे जब दो डिफरेंट सॉलिड फेज होंगे, अल्फा फेज और सीमेंटाइट फेज. और लेडोबराइड तब कहेंगे जब हमारा ऑस्टेनाइट फेज होगा और उसके साथ में हमारा सीमेंटाइट फेज होगा. ओके गाइस, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेवेंट टू योर iron carbon phase diagram and the cooling of pure iron. So now I'm stopping this session here. Sir, I Okay, have so one doubt here. yeah. Sir, Yeah, please go ahead. ये सर जो कर्व है उनका नेचर कैसा होता है? कर्व देखिए, कहीं पर स्ट्रेट हो सकते, कहीं पर स्ट्रेट है और कहीं पर वो स्ट्रेट नहीं है, कर्व टाइप के हैं. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व स्ट्रेट है. ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन इज इट इज हो गया. और ये वाला जो है आपका, ये थोड़ा सा कर्व नेचर का है. तो इट इज अगेन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द साइंटिस्ट. ओके, तो जो हम लोगों ने एक बार बोला था ना, सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व, यस सर. तो वो सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व के हिसाब से जैसे जैसे कंपोजिशन आपका बढ़ता रहता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये कंपोजिशन है और ये कंपोजिशन है, तो दोनों कंपोजिशन में जो बिहेवियर होंगे वो चेंज होंगे. तो ऐसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो हमें फीचर्स मिलते हैं उनको एक्यूमुलेट करके, उनको क्लब करके ये पूरा फेज डायग्राम बनाया जाता है किसी भी कंपोजिशन के लिए. सर ओके सर. सर सेकंड डाउट है सर, ये हाइपो स्टील और हाइपर स्टील जो आप बता रहे थे, तब नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा. हाँ, मैं भी थोड़ा सा आउट हो गया था. तो सर एक बार सर प्लीज हाइपो स्टील और हाइपर स्टील का ये 0 पॉइंट ये फिर से बता दीजिए सर प्लीज. नहीं, क्या चीज नहीं समझ में आई बेटा इसमें? सर हाइपो स्टील आपने जब लिखा था उसके बाद ही नेट चला गया था, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही थी. ओके, तो यहाँ पर देखो आपको यूटेक्टाइट पॉइंट दिखाई दे रहा है. यस सर. ठीक है, यूटेक्टाइट पॉइंट से अगर आप राइट साइड की तरफ चलोगे तो आपका कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा. ओके, सो कार्बन कंटेंट विल इंक्रीज व्हेन यू आर मूविंग राइट साइड टू योर यूटेक्टाइट पॉइंट. ओके, तो वहां से लेके 2% कार्बन तक अगर आप चलोगे तो आपकी जो स्टील होगी वो हाइपर यूटेक्टाइट कहलाएगी. ओके. और उसके लेफ्ट साइड में अगर आप चलोगे तो वो हाइपो यूटेक्टाइट स्टील कहलाएगी. ओके सर. ओके सर. एंड सर वन मोर थिंग सर, हम जो आयरन में वो प्रॉपर्टीज जो चेंज होती हैं, अल्फा सेकंड जो फेज होता है अल्फा का, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस होती हैं, फेरो मैग्नेटिक, तो वो फेज सर कौन सा वाला है? दोनों ही अल्फा फेज रहेंगे. हाँ, पर वो इस डायग्राम में नहीं, इसमें नहीं है बेटा, उसमें पीछे वाले डायग्राम में मैंने समझाया था उसको. और इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो कूलिंग के टर्म्स में अगर आप उसको नेचर में लेके आओगे देन यू विल बी अंडरस्टैंड. ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि yes, व्हेन ये जो कूलिंग कर्व है इसमें कार्बन नहीं है मेरे दोस्त. ओके. ये प्योर आयरन के बेस पे मैंने कूलिंग कर्व स्टाइल डिजाइन किया है आपका. सो मींस हम अगर कार्बन ऐड करते हैं तो उसकी एक तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है. रिड्यूस तो होगी. ओके.
तो सर रिड्यूस होंगी, बट कुछ हद तक उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी। अब आप देखो स्टील को आप क्या मैग्नेटिक कर पाते हो क्या? नहीं। नहीं हो पाता है ना। नो कास्ट सर। आयरन तो आपका और मैग्नेटिक नहीं हो पाता जब स्टील नहीं हो पाया, बिकॉज यस स्टील हैज अ लेसर कंटेंट ऑफ द कार्बन. यस Okay, सर। so that's why this particular feature we are introducing here with the help of this pure iron. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Any other doubt from other student? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं. यू नो वेल कि आपका अगला एग्जाम भी शायद ऑनलाइन होने वाला है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहीं से ब्रेक किए जाएंगे. सर हाँ, सर जो अपना ये प्योर आयरन का डायग्राम है, इसमें सर जो हमें सॉलिड आयरन मिलेगा एकदम, मतलब हाँ सॉलिडिफाई हुआ, वो किस पॉइंट पे मिलेगा? एक तो रूम टेम्परेचर पर तो होता ही है, बट अनदर टेम्परेचर पे कोई मिल सकता है क्या? नहीं देखो, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका लिक्विड फेज से सॉलिड फेज बनना शुरू हुआ. यस करेक्ट. सर। आप ले आए उसको धीरे से ठंडा करके, मान लीजिए आप उसको ले आए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे. यस ओके, सर। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अल्फा आयरन तो होगा. बिल्कुल सर। ठीक है. और उस टेम्परेचर से अगर आपने इसको कूल कर दिया, ठीक है, फ्रीज कर दिया, तो ये अल्फा आयरन आपका कन्वर्ट हो जाएगा. अल्फा आयरन वो कहते हैं ना, अरेस्टिंग ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर. देयर इज अ टेक्निकल टर्म, अरेस्टिंग ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर. अरेस्टिंग ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर आपका मटेरियल है, उसी टेम्परेचर पे अगर आपने कूल कर दिया उसको फास्ट कूलिंग से, क्वेंचिंग के माध्यम से, ओके, तो जो उसमें फीचर थे वो वहीं अरेस्ट हो गए. तो अगर आपका तो फिर इस टेम्परेचर, तरीके, यस सर, तो सर फेस भी चेंज हो जाएगा। जब हमने सर वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो सर वहां से एफसीसी से वो बीसीसी हो गया था, सडन कूलिंग, मतलब कूलिंग की वजह से। तो ऐसे तो सडन सर जो कूलिंग अपना की वजह से बीसीसी। बीसीसी नहीं हुआ होगा, बीसीटी हुआ होगा, मार्टेनसाइट फीचर्स आए होंगे उसमें. यस सर, यस सर, बीसीटी, यस सर। है ना. तो अब यहाँ पर एक मुद्दा होगा कि किसी चीज को आप अरेस्ट करने की कोशिश करोगे तो कुछ लोग तो सरेंडर होके जैसी स्टेज में होते हैं वैसी शक्ल में और वैसी सिचुएशन में अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, और कुछ लोग चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप में डाइवर्ट करना चाहते हैं या कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो उस फेज में नहीं हो पाते हैं. ठीक है. तो एफसीसी से उसको बीसीसी में आना चाहिए था, लेकिन वो बीसीसी में ना आके बीसीटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो मार्टेनसाइट फीचर्स देने लगता हाँ, yes, sir। है ना. तो ऐसे अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो उसी का कारण है कि वो उसमें एकोमोडेट होना चाहता है, लेकिन वो जो समय है और जो उसका एग्जिस्टिंग फीचर है उसके हिसाब से उसमें टेंडेंसी नहीं है कि उस थंब रूल के हिसाब से वो सेट हो, और वो एक नया फीचर बनाता है विच इज नोन एज अ काइंड ऑफ मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, जो कि बीसीटी है. ठीक है. यस सर। नहीं समझ में आया? ओके सर। नहीं सर, वो तो आ गया, बस यही डाउट था। बोलो तो सर, फिर सर डाउट आ रहा इस है इसमें तरीके सर। से तो अल्फा फेज तो सर हमारा खत्म ही हो जाएगा। जो सेकंड अल्फा है ना, कहाँ? जो सर हमारे कौन फेरोमैग्नेटिक सा, प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक? हाँ. नॉन मैग्नेटिक में सर। हाँ. नहीं, वो तो सर पैरामैग्नेट है, ये फेरोमैग्नेटिक है। तो सर ये फिर खत्म नहीं ही हो नहीं जाएगा नहीं जब हम नहीं नहीं उसको खत्म फर्दर। होगा, नहीं खत्म होगा दोस्त. एक जो एक सर्टेन ड्यूरेशन देना चाहिए उसको कूलिंग करने के लिए, उस ड्यूरेशन के हिसाब से आप कूल करते हुए लाइए, चीजें आराम से कूल होके आएंगी और अल्फा फेज आपका एडजस्ट करेगा. ओके सर। और मैक्सिमम एनिलिंग वगैरह तो सारी आपकी अल्फा फेज में ही होनी है. यस सर, यस सर। एंड सर जब पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा होता है टेम्परेचर की वजह से, तो सर उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है कि फिर मतलब चार्ज सब अलाइन होने लगते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अब बाद? ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, यूनिट 2 के लास्ट में हमें सेमीकंडक्टर भी पढ़ना ओके है ना. तो आई थिंक ये डिस्कशन अगर हम वहां कनेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा. ओके सर। कुछ आप लोग के एग्जाम का फाइनल हुआ क्या? सर अभी मैसेज तक तो कोई नहीं आया है। क्लासे कब तक है? ऐसा सुन रहे हैं क्लासे मतलब दिसंबर में सस्पेंड हो जाएंगी एट सर्टेन टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर डेट तक की क्लासेस चल रही हैं, ऐसा कुछ है.
खैर जो भी आएगा उसको करेंगे। तो ये आयरन कार्बन डायग्राम का इक्विलिब्रियम डायग्राम क्लियर हो गया, हम बना सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको जल्दी से एक रफ स्केच अपने दिमाग में या अपने पेपर पे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज योर आंसर में बी रॉन्ग। कंपोजिशन आपसे पूछ सकता है कि यूटेक्टाइड रिएक्शन का कंपोजिशन बताइए, यूटेक्टाइड रिएक्शन का टेम्परेचर बताइए, पेरिटेक्टिक रिएक्शन का कंपोजिशन या टेम्परेचर बताइए, या पेरिटेक्टिक रिएक्शन का फीचर क्या है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या कर रही है, लिक्विड से दो सॉलिड बना रही है, या लिक्विड प्लस सॉलिड जो है एक सिंगल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड प्लस सॉलिड वन इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू अनदर सॉलिड। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ डेवलप हो सकते हैं, प्लीज टेक केयर। ओके, so I am stopping this class here. We'll meet in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir.